Yes, good morning to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes. आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. In last lecture, we have discussed about Clapeyron equation. Clapeyron equation. Now, the last equation of our topic is Clausius-Clapeyron equation. Clausius-Clapeyron equation. We have to obtain Clausius-Clapeyron equation. Now, as you know, the Clapeyron equation. According to Clapeyron equation, this equation we have obtained yesterday. So according to Clapeyron equation, dp upon dt is equal to delta h upon t into delta v. We call this as equation number 1, and this is Clapeyron equation. That is dp upon dt is equal to delta h upon t into delta v. It is equation number 1. Now here delta v is v2 minus v1. Now suppose liquid and vapors are in equilibrium. That is a two-phase system. Two phases are equilibrium. One phase is liquid and other is vapor. So suppose that liquid and vapor are in equilibrium. The volume of liquid is small as compared to volume of vapor. So here the volume of liquid is small as compared to volume of vapor. That is volume of liquid is very less, hence neglecting volume of liquid. So we can write delta v is equal to, that is v. So instead of that is delta v, we can write v in above equation. Understand? So what is the equation 1 becomes, देखिए यानी डेल्टा v के जगह क्या लिए हमने v, because it is two phase system, volume of that is liquid is smaller, so we can take that is delta v is equal to v. Now dp, therefore equation 1 becomes dp upon dt is equal to delta h upon t into delta v. This is equation number 2. क्या किया हमने? We have taken a Clapeyron equation. Clapeyron equation में delta v क्या है? Change in volume v2 minus v1. It is two phase system, that is liquid and vapor are in equilibrium. The volume of liquid is very small, so it can be neglected. So we can write delta v is equal to v. So equation 1 becomes.
dp upon dt is equal to delta H upon T into V. Now suppose gas is ideal for 1 mole, that is one ideal gas equation for 1 mole is PV is equal to RT as for 1 mole. From this, what is the value of V? Therefore, V is equal to RT upon P. V is equal to RT upon P. And now put this value of V as RT upon P in above equation, equation 2 में. Equation 2 में V है यहाँ पर, देखिए. So उस V की वैल्यू क्या है? From ideal gas equation for 1 mole, RT upon P. तो यहाँ पे V के जगह RT upon P रखिए. Then I am rearranging. Then what that equation becomes 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H into P T into RT. देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, V के जगह RT upon P रखिए, तो ये P ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में और RT नीचे आएगा. Understand? So 1 upon P into dP, 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H into P divided by T into RT. Now again rearranging these terms, 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H upon RT square, delta H upon RT square, delta H upon RT square. Understand? See here, this ये equation में ये P is not, 1 upon P is not there. अगले स्टेप में आएगा क्योंकि ये P जो है राइट हैंड साइड में ही नीचे आएगा, तो ये यहाँ पर डबल आ गया है. सो इट इज नॉट देयर 1 अपॉन P. अंडरस्टैंड? ये 1 अपॉन P गलती से टाइपिंग में आ गया है, इट इज नॉट देयर क्योंकि dP अपॉन dt है ना. dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन दैट इज T into V and V is P अपॉन दैट इज RT अपॉन P. तो ये P ऊपर जाएगा और RT नीचे आएगा. सो दैट इक्वेशन बिकम्स 1 अपॉन P. ये P को नीचे लिया हमने, ये 1 अपॉन P नहीं है, रिमेंबर. 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H और ये T into T square and this RT square. So this is 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H upon RT square. Now, but again, we have seen that is 1 upon P into dP upon dt is equal to partial derivative of ln P into divided by T. We have seen. So see equation 3 and 4. See equation 3 and 4. Equation 3 is this. Equation 3, 1 upon P into dP upon dt is equal to delta H upon RT square. And equation 4 is again, that is left hand sides of equation 3 and 4 are same. 1 upon P into dP upon dt is equal to the derivative of ln P divided by dt. So compare 3 and 4. That is left hand sides of equation 3 and 4 are same. So right hand sides are also same. Right hand sides are also same. तो क्या होगा? That is del ln P upon dt is equal to delta H upon RT square. यानी ये equation 3 का right hand side that is delta H upon RT square और equation 4 का that is right hand side, both are equal. So ये equation 4 का right hand side है del ln P upon dt is equal to और ये equation 3 का right hand side है delta H upon RT square. So this is equation number 5, and this equation 5 is called as Clausius-Clapeyron equation. This equation 5 is called as Clausius-Clapeyron equation. Now consider the vaporization of liquid. Consider the vaporization of liquid. So what we can write, partial derivative of ln P upon dt is equal to delta HV upon RT square. वही Clausius-Clapeyron equation ही वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड के फॉर्म में लेके, क्या डिफरेंस है खाली, दैट इज डेल्टा H के जगह आपने क्या लिया है, वी हैव टेकन डेल्टा HV एंड डेल्टा HV इज द latent heat of vaporization. Delta HV is the latent heat of vaporization. Understand? And we call this as equation number 6. Now rearranging this equation number 6, क्या किया आपने, देखिए equation 6 क्या कीजिए, ये dt को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, remaining is same. This is Clausius-Clapeyron equation and in the form of that is when vaporization of liquid is considered. यानी delta H के जगह delta HV लिए है, V means vaporization and delta HV latent heat of vaporization. Rearrange किए,
d of ln p is equal to delta hv upon rt square into dt. Now integrating on both side, equation 7, we call this as equation 7 और equation 7 का integration लीजिए. Integration into d ln p is equal to integration delta hv upon rt square into dt. अब ये d means derivative, this integration. When integration and derivative come, they get cancelled. What remains? ln p रहेगा. ln p is equal to, अब देखिए what is the integration of, I will written directly 1 upon t. delta hv constant है, r constant है, तो इंटीग्रेशन किसका लेना है? 1 upon t square into dt. what is the integration of 1 upon t square into dt? कल देखे हमने, ये याद ही रखेंगे आप, बहुत मर्तबा आता है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसा कि 1 upon t ln t या log t रहेगा उसका इंटीग्रेशन ln t का, और 1 upon t square का इंटीग्रेशन क्या है? -1 upon t. रिमेंबर ये दो फॉर्मूले याद रखिए आप, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t या 1 upon x into dx is log x या ln x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square is -1 upon t. तो यहाँ पे लिख के देखिए डेल्टा एच वी ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, आर भी कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा. यहाँ इंटीग्रेशन में क्या रहेगा? 1 upon t square का इंटीग्रेशन, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t square -1 upon t, -1 upon t प्लस c. सो दिस इज ln. नाउ कन्वर्ट कीजिए ln को log में, तो क्या रूल है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, और बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिया है न्यू डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में. तो ln p को log में लिखिए, log p इज इक्वल टू माइनस एज इट इज डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 rt प्लस c. व्हाट इज c हियर? c क्या है? Constant. एस इंटीग्रेशन कांस्टेंट. we call constant तो है ही, but it is called integration because we have added c after integration. integration लेने के बाद हमने ऐड किया है, understand? so it is, that is the constant of integration. hence log p against 1 upon t. अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है, log p on x axis we have to take log p against 1 upon t. it gives straight line which has the slope. अब देखिए कोई इक्वेशन है, दो क्वांटिटी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका स्लोप कैसा मालूम करेंगे? अब देखिए ये इक्वेशन में, इक्वेशन 10 में देखिए ग्राफ किसके, कौन से क्वांटिटी के वर्सेस कर रहे हैं आप? log p और 1 upon t. तो log p को छोड़िए और 1 upon t को छोड़िए, तो बाकी के जो टर्म्स रहेंगे वो रहेगा स्लोप. log p और 1 upon t को छोड़ेंगे तो बाकी के टर्म्स क्या रहेंगे? yes, log p छोड़ दी, स्लोप मालूम करना है. यानी आपको एक इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशन की मदद से उसका स्लोप मालूम करना है. तो क्वांटिटी वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप, ये log p छोड़ दीजिए, 1 upon t छोड़ दीजिए, तो बाकी का जो पार्ट देखिए, ये मैं बता रहा हूँ रेड पॉइंटर से, ये माइनस डेल्टा, ये log p तो चले गया क्योंकि ग्राफ में आ गया हो, 1 upon t भी चले गया बिकॉज ऑन y एक्सिस वी हैव टेकन. तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा रहेगा? कि माइनस डेल्टा एच वी और 2.303 r, ये पार्ट होगा उसका स्लोप. अंडरस्टैंड? देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू, देखिए माइनस डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 r. टी नहीं, गलती से टी आया, देखिए टी इज नॉट देयर क्योंकि कॉपी पेस्ट में एज इट इज हो गया. टी इज नॉट देयर, रिमेंबर दैट. टी क्योंकि 1 upon t तो हमने लिए है ना यहाँ पर, तो टी नहीं आएगा इसमें. अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द स्लोप? माइनस डेल्टा एच वी अपॉन 2.303 r. टी इज नॉट देयर. ओके, नेक्स्ट. नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 7. Again integrating equation 7 between the limits, that is p1 to p2 and temperature t1 to t2, p1 to p2 and temperature t1 to t2. again rearranging equation 7, d of ln p इंटीग्रेशन ही लेना है लेकिन लिमिट्स लिए हमने, p1 to p2 is equal to delta hv upon r, t कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t1 to t2 1 upon t square. ये देखिए फिर t आ गया, t क्योंकि हमने अंदर भी लिए हैं बाहर भी लिए हैं, तो t कांस्टेंट नहीं है, 1 upon t square है. दिस इज बाय मिस्टेक, दैट इज टाइपिंग में क्या हो गया है? r दिया गया है, तो डेल्टा एच वी अपॉन r ओनली. अंडरस्टैंड? सो ln p is equal to now integration and derivative. When they come together they get cancelled, तो क्या रहेगा? ln p, और what are the limits? p1 to p2 and
दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी अपॉन आर, ये टी नहीं है यहाँ पर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर। फिर आया देखिए ये 2-3 जो फॉर्मूले हैं याद रखिए, जैसा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एल एन टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर? अभी बताइए, ये याद रखिए, बहुत मर्तबा आएगा ये, थर्मोडायनेमिक में भी था ये, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्या है? मैथ्स वाले हैं कि इसमें मैथ्स लॉग नहीं, लॉग टी तो 1 अपॉन टी का 1 अपॉन टी स्क्वायर बोर्ड हमें 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए क्या आगे 1 अपॉन टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, एक पावर क्या करते हैं, ऐड करते, तो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, टी रेस टू माइनस 2 होगा ना। न्यूमरेटर में 1 अपॉन टी स्क्वायर या डिनोमिनेटर में टी का पावर कितना है, 2 है, और न्यूमरेटर में लेंगे तो पावर क्या होगा, टी रेस टू माइनस 2। जब इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा, प्लस 1 होगा, और -2 + 1 यानी टी रेस टू -1, और टी रेस टू -1 को अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में लेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन टी। इस तरह से आया है, वी डायरेक्टली रिमेंबर दैट इज -1 अपॉन टी। अंडरस्टैंड? सो now put upper limit and then lower limit, ln p2 minus ln p1 is equal to delta hv upon r, ये t नहीं है, remember it by mistake it is in the typing, वो copy paste करने में t भी आ गया है, in bracket -1 upon t2 plus 1 upon t1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, ये डायरेक्टली मैंने लिखा हूं। अंडरस्टैंड? नाउ log m minus log n, अगेन वही ln p2 upon p1 is equal to delta hv upon r into bracket, that is 1 upon t1 minus 1 upon t2, जो पॉजिटिव क्वांटिटी है पहले लेंगे। नाउ अगेन दैट इज ये ln है, इसको log में कन्वर्ट करना है, तो क्या रूल है, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, multiply, yes, so log of p2 upon p1 is equal to delta hv upon 2.303 r in bracket 1 upon t1 minus 1 upon t2. This is integrated form of, that is a Clausius-Clapeyron equation. एक Clausius-Clapeyron equation तो ये है हमारा, that is Clausius-Clapeyron equation। फिर इसका इंटीग्रेशन किया हमने, इसको रीअरेंज किए, dt को इधर लेकर गए राइट हैंड साइड में, तो ln p हो गया, और इसकी लिमिट ली हमने p1 to p2 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिमिट्स आए इसके विथ रिस्पेक्ट टू dt है तो t1 to t2। तो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इंडिकेट दैट heat of vaporization may be calculated if the vapor pressure of liquid of two different temperature is given, यानी two temperature are given, vapor pressure are given, delta hv हम मालूम कर सकते by putting the value of p1 p2 t1 t2 and that is r, we can calculate the latent heat of vaporization. So this is regarding the, that is a Clausius-Clapeyron equation. Remember the equation जो है याद रखिए, Clausius-Clapeyron equation. Now the last bit from this topic, that is the Le-Chatelier's principle. Le-Chatelier's principle ये आपको 11 में हुआ था, ली शेटलर का उसूल बोलकर, उर्दू मीडियम से किए होंगे आपने अगर 11, तो उसमें ली शेटलर का प्रिंसिपल या ली शेटलर का उसूल या Le-Chatelier's प्रिंसिपल। Le-Chatelier's इज ए फ्रेंच केमिस्ट, फ्रेंच साइंसदान, इसने एक रूल दिया which affect the effect of temperature, effect of pressure or effect of concentration on the reaction. तो Le-Chatelier's का प्रिंसिपल किस पे इफेक्ट करता है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। देखिए प्रिंसिपल तो नहीं पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछेगा आपको, ये प्रिंसिपल का नाम क्या है ऐसे पूछेगा, Le-Chatelier's है या और कोई दूसरा जो है प्रिंसिपल का नाम दे सकता है इसमें। सो इट इज द Le-Chatelier's principle. It is French chemist, he has given a principle, that principle is called as Le-Chatelier's principle. So क्या है principle? According to this principle, if a system is in equilibrium, यानी कोई भी system equilibrium state में है, equilibrium state में है, is subjected to change temperature, pressure और concentration. यानी अगर कोई system equilibrium state में, equilibrium में कब होती है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब होती है, मैंने पहले पीरियड में बताया था आपको, ये टॉपिक के पहले पीरियड में, कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे तो 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, और दोनों का रेट
rate of forward reaction equal to rate of backward reaction, then we call as system in equilibrium. जब दोनों रिएक्शन का रेट बराबर होता है, so इसे हम कहेंगे that is system is in equilibrium. So according to this principle, if a system is equilibrium state is subjected to change temperature, pressure or concentration. अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या प्रेशर चेंज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड सो एज टू नलिफाई, नलिफाई यानी कैंसल, यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस पर कुछ असर होगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो उस पर कुछ असर होगा रिएक्शन पे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो उस पर कुछ असर होगा. तो वो जो चेंज है उसको नलिफाई करने के लिए, उसको कैंसल करने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज द ली चैटलियस प्रिंसिपल. दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट इज सब्जेक्टेड टू चेंज. एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसको क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं. क्या चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या प्रेशर चेंज कर रहे हैं या कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. क्यों शिफ्ट होगा, इन सच अ वे दैट टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, यानी जो टेम्परेचर चेंज कर रहे, तो जो रिएक्शन पे जो चेंज इफेक्ट हो रहा है उस चेंज को, यानी रिएक्शन को ओरिजिनल पोजीशन में रखने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, टू नलिफाई द चेंज. सो दिस इज कॉल्ड एज द ली चैटलियस प्रिंसिपल. आपको क्वेश्चन में कैसा, देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, स्टेटमेंट देंगे, दैट इज whenever a system is in equilibrium is subjected to change temperature, pressure or concentration, then equilibrium is shifted in such a way that to nullify the effect of the change. This principle is called as dash dash. अलग अलग आपको ये पूछेंगे इसमें, लॉ ऑफ मास सेक्शन पहला ऑप्शन रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा कैलेप्रियन लॉ, तीसरा रहेगा ली चैटलियस प्रिंसिपल या चौथा, तो इट इज द ली चैटलियस प्रिंसिपल. याद रखिए. या दूसरा क्वेश्चन और एक पूछ सकता है कि Lee Chatelier's principle is related with effect of number 1 temperature, number 2 pressure, number 3 concentration और number 4 all of these. तो करेक्ट आंसर क्या है, all of these. all of these, क्योंकि इसमें इफेक्ट किसका किसका है, टेम्परेचर का भी है, प्रेशर का भी है और कॉन्सेंट्रेशन का भी. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. देखिए वैसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है ली चैटलियस प्रिंसिपल पे. देखिए now next and last is the application of ली चैटलियस प्रिंसिपल. जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखे हैं तो वो हम देखेंगे इसमें. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज रेज यानी इंक्रीज करे टेम्परेचर तो क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज रेज रिएक्शन विल प्रोसीड टू इन डायरेक्शन इन विच सम हीट कैन बी एब्सॉर्ब. यानी जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट एब्सॉर्ब होती है, और हीट एब्सॉर्ब होती है सो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यस जो जिस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है उसे हम कौन सी टाइप कहते हैं रिएक्शन की. रिएक्शन के दो टाइप है, मतलब जिसमें एक में हीट इवॉल्व होती है यानी इवॉल्व खारिज होती है, दूसरे में जज्ब होती है, एब्सॉर्ब होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इफ टेम्परेचर एंडोथर्मिक. एस करेक्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक heat is absorbed is called as endothermic reaction. ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. देखिए आपको क्वेश्चन, a reaction in which heat is absorbed is called dash dash. Endothermic reaction, exothermic reaction, reversible reaction, irreversible reaction. ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं. तो this is called as the endothermic reaction. If temperature is raised या increased, reaction will proceed to in direction in which some heat can be absorbed so that temperature of the system remains constant. Thus, increase in temperature shift the equilibrium in forward direction. जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी और जो इक्विलिब्रियम क्या होगा, शिफ्ट होगा. which proceed with absorption of heat, that is endothermic reaction. अभी आपने कहा that is endothermic reaction. And in or if we heat, that is a more, अगर इस रिएक्शन को टेम्परेचर ज्यादा लेकर हीट करेंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन. एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ दोज रिएक्शन व्हिच प्रोसीड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे है, इसमें क्या होगा, हीट ज्यादा हीट करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में.
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिवर्स यानी फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, यहाँ पर एंडोथर्मिक है, हीट इज एब्सॉर्ब। और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए फॉर एग्जांपल N2 + O2 इट गिव्स 2NO और डेल्टा H इसमें 43.2 किलो कैलोरी। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन। इसमें जो है फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सिमिलरली दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 it gives 2NH3. The forward reaction is exothermic. So these are the, so by increasing the temperature of the reaction we can obtain good yield of ammonia. देखिए इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि formation of ammonia it is prepared by Haber's process. Haber's, Habers. Haber's is a name of scientist. He has prepared the good yield of ammonia. And remember the name of scientist. I have not written here, but मुझे that is last time one question is asked. That is नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया गैस हासिल होती है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस, ये कौन से प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था। इस प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस, HABERS। रिमेंबर HABERS, हैबर्स प्रोसेस। हैबर का तरीका, जैसे 11 में था आपको ये हैबर का तरीका या हैबर्स प्रोसेस। रिमेंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि नाइट्रोजन और अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मिलाप से अमोनिया गैस तैयार होती है। इट इज विच मेथड, हैबर्स प्रोसेस, एनी अदर प्रोसेस। सो हैबर्स प्रोसेस, हैबर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, अंडरस्टैंड। सो और इसका जो रेशो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कितना है इसमें, द रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस इज दैश। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्योंकि लीट एट क्लियर पे एक क्वेश्चन आएगा, क्लासेस क्लियर पे इतना चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, बट इस पे आ सकता है। देखिए एक तो हैबर्स प्रोसेस, दूसरा जो है टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, और जो तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन हैबर्स प्रोसेस, या अमोनिया की तैयारी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, बताइए। रिएक्शन है, रिएक्शंस में बता सकते हैं आप, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें, S 2. नाइट्रोजन नॉट 1, N2 यानी एक है। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या है, N2 है ना, नाइट्रोजन गैस का 1 है। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3. 3, करेक्ट। तो रेशियो क्या होगा फिर 1:3, 1:3, याद रखिए 1:3, 1:3, द रेशियो इज 1:3, अंडरस्टैंड। और 1:3 लेंगे तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे, देखो रिएक्शन में, देखो नजर आ रही है रिएक्शन यहाँ पर, ये रिएक्शन देखिए, मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। अमोनिया NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे, 2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो अगर रेशियो चेंज करेंगे, देखिए रेशियो चेंज करेंगे, रेशियो चेंज करेंगे, इफ 2:6 नाइट्रोजन के 2 लेंगे, हाइड्रोजन के 3 लेंगे, तो अमोनिया के कितने मिलेंगे बताइए। ऐसा आता है, देखिए रेशियो पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। जनरल याद रखिए आप, जनरल रेशियो कितना है 1:3, ये याद रखिए। तो 2 लिया है, 1:3 को 2 से मल्टीप्लाई, 1:3:2 ऐसा याद रखिए, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है 3, और अमोनिया क्या 2 है, 1:3:2। तो अभी कितना है आपको, अगर नाइट्रोजन का 2 लेंगे और हाइड्रोजन का 6 लेंगे तो अमोनिया के कितने मिलेंगे, यस नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करना है सबको। नाइट्रोजन के 2 लिए तो 2N2 हो गया, 2N2, हाइड्रोजन के 6 ले रहे यानी 2 से मल्टीप्लाई किए 6। अमोनिया के कितने मिलेंगे, हाउ मेनी अमोनिया, 6, 2 into 3. 3 नहीं, 2 into 2, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन को 4 मिलेंगे।
4 करेक्ट, 4 मिलेंगे क्योंकि 2 से ऐसा, या 1:3 याद रखिए, 1:3:2, 1 नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन का है और 2 नाइट्रोजन अमोनिया का है। अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर दैट रेशियो। दूसरा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, the reaction in which there is no change in number of moles of reactant and product. अब ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल चेंज हो रहे क्या? बताइए, चेंज हो रहे क्या? रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? रिएक्टेंट कौन कौन से है? नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 है और नाइट्रोजन का 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 4 4 करेक्ट। और 4 मॉलिक्यूल से कितने तैयार हो रहे? 4 से कितने तैयार हो रहे ना अमोनिया? 4 नहीं, 2 तैयार हो, 2 NH3 फॉर्म। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो NH3 के मॉलिक्यूल कितने मिल रहे? 2 मिल रहे, यानी 4 मॉलिक्यूल से, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 है, तो ये 4 हो गए। 4 से कितने तैयार हो रहे? 2 से। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है? पहले 4 थे, बाद में 2 हो गए। वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? करेक्ट। सो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर। कम हो रहा है, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल लिए थे आपने। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ टी बताया मैंने, 4 कप आपने क्या लिए थे? मिल्क लिए थे या वाटर लिए थे, उसे हीट किए और आफ्टर हाफ एन आवर आपने देखे तो 2 ही कप हो गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। दैट इज फ्रॉम 4 molecule of water we have obtained that is 2 molecule, जो भी reactant या product हो। Understand? So effect of that is pressure, the reaction in which there is no change in number of moles of reactant and product are not affected by change in pressure। जिसमें change number of moles same रहते हैं। अब यहाँ पे बताइए number of moles इंक्रीज हो रहे क्या डिक्रीज हो रहे क्या? रिमेन्स एज इट इज। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ऐसा रिएक्शन देंगे आपको, द नंबर ऑफ मोल इन दिस रिएक्शन आर, नंबर 1 इंक्रीजेस, नंबर 2 डिक्रीजेस, नंबर 3 रिमेन्स एज इट इज। एज इट इज सेम रहेंगे सर। कैसा? देखिए N2 का 1 है, N2 का 1 है और हाँ, 1 है, तो कितने हो गए? 2 दोस्त का है, भी 1 है, 2 हो गए। यहाँ पे रिएक्टेंट के 2 है और मिलने वाले जो NO के कितने हैं? 2 है, तो सेम रहेंगे। अंडरस्टैंड? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहे, तो इसका इफेक्ट, इसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अंडरस्टैंड? दैट इज चेंज कितना हुआ? चेंज यानी डेल्टा एन, चेंज कितना हो गया? इसमें चेंज हुआ है, लेकिन कितने से हुआ है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, 0 से हुआ है, यानी 0 से हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ मोल दैट इज डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। Hence, pressure would have no effect on this equilibrium. If the pressure is increased, the equilibrium will shift in that direction in which the total number of moles is decreased. That is in favor of the reactant. And these are the examples. PCl5. अब इसमें क्या हो रहा है? देखिए इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है? बताइए। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, ये रिएक्शन में आपको, हम ऑब्जेक्टिव का ज्यादा तरफ ये करेंगे। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, पहले ये बताइए। PCl5 phosphorus pentachloride, when it is heated it is converted into PCl3 that is phosphorus trichloride and Cl2। कौन कौन से मॉलिक्यूल से? PCl5 का 1 मॉलिक्यूल है, PCl3 का 1 है और Cl2 का 1। अब रिएक्टेंट के कितने हैं बताइए? इसमें रिएक्टेंट के 1, रिएक्टेंट का 1 है, और प्रोडक्ट के कितने हैं? 2 है। 2 है। वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम इंक्रीज 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर, 1 मोल से 2 मोल तैयार हो रहे। ये PCl5 का 1 है, इससे 2 तैयार हो गए, एक तो PCl3 तैयार हुआ और एक Cl2। इन दिस रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड सिंस डेल्टा एन इज पॉजिटिव, डेल्टा एन इज पॉजिटिव। अब देख तीसरी रिएक्शन देखिए। तीसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? SO2 के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 3, और 2 मिल रहे। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। नहीं, देखिए टोटल, देखो टोटल रिएक्शन कितने? 3 है, 3 से 2 मिल रहे,
3 थे पहले, बाद में 2 हो गए। तो डिक्रीज हो रहा है सर। ठीक है, आप डिक्रीज बोलेंगे, ठीक, ओके, डिक्रीज ही हो रहा है। The equilibrium will therefore shift in the forward direction in which there is increase in the number of, okay, और last है effect of concentration. So in formation of ammonia, volume dash dash increases, decreases, remains as it is. बोलिए, ऐसा क्वेश्चन theoretical क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता, डिक्रीज होता, रिमेन्स एज इट इज, या नन ऑफ दिस? देखो, डिक्रीज होता। करेक्ट, डिक्रीज होता। कैसा होता बताइए? कितने मोल से कितने मोल तैयार हो रहे ये बताओ? रिएक्टेंट के कितने हैं? 4 मोल से 2 तैयार हो रहे। करेक्ट, वेरी गुड। सो 4 मोल से 2, ये आपके समझ में आ गया। अब ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेंगे आपको, रिएक्शन और उसका डिक्रीज इंक्रीज ऐसा पूछेंगे आपको। दैट इज इफेक्ट concentration. If concentration of the reactor is increased or product is removed, the equilibrium will shift in the forward direction so as to favor the reaction which proceed with the decrease in the number of mole. So N2 plus 3H2, it gives 2NH3 as volume increases. An excess of N2NH2 will increase the yield of ammonia. And the ratio of nitrogen and hydrogen is 1:3. नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन के 3 है। ये रेशो याद रखिए, रेशो पूछा हुआ है। ऐसा आपको एग्जाम में पूछता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में? 1:4, 2:4, 1:3 और 1:4। 1:3। ये याद रखिए, पूछा पिछले बार को पूछा था, देखिए 1:3, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, इसलिए 1:3। ओके, सो दिस इज अबाउट द, दैट इज ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक पर क्वेश्चन कभी पूछते हैं, 5 क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। 5 क्वेश्चन पूछेंगे। स्पेशली चैटलियस पे आता है। फिर स्टार्टिंग में जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करने के लिए कहा था, केसी, वो उस पर एक आता है। और बाकी के जो इक्वेशंस है, मॉन्टॉफ इक्वेशन है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, क्लैपेरॉन इक्वेशन है, वो इक्वेशंस जो है याद रखिए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यू ट्रेस, ज्यादा तवज्जो आप एमसीक्यूज पर दीजिए। मैंने पीडीएफ भेजा है और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का टेस्ट भी भेजा है, वो भी दीजिए। थर्मोडायनेमिक सेकंड का भी टेस्ट भेजा है, वो भी दीजिए। और एमसीक्यूज भी भेजा हूं मैं, तीनों टॉपिक के एमसीक्यूज। आज मैं रीसेंड करूंगा, आप लोगों ने अगर डिलीट हुआ होगा आपके हाथों से तो आई विल सेंड अगेन, कल और भेजूंगा मैं एमसीक्यूज, बिकॉज एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट। आपका एग्जाम एमसीक्यूज पर है, इसलिए एमसीक्यू की ज्यादा तैयारी करो आप। मैंने पीडीएफ ओके सर। एमसीक्यू का तो और भेजूंगा मैं आपको। ओके, तो यहाँ बस कंप्लीट हुआ है। आप पूछिए। वो केमिस्ट्री नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट बोलो ना सर। फर्स्ट ईयर का रहेगा, अभी हमारे कैसा एग्जाम में ही है उसका। आप जब डिस्प्ले करने वाले हैं नोटिस बोर्ड पे, अभी कैसा है नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे तो उस पर कोई नहीं है वहां पर कॉलेज में। तो जैसा कॉलेज शुरू होगा ना आपका एग्जाम के बाद, मैं डिस्प्ले करूंगा नोटिस। सर सिर्फ नाम बोल दो। नहीं तो अभी तो दूसरे नहीं हुए ना, फर्स्ट सेम के थोड़े रह गए पेपर, तो दोनों एक साथ लगाना है। सेकंड ईयर का तैयार हो गया रिजल्ट, तो दोनों पे एक ही से है। अभी अगर नोटिस बोर्ड पे जब बच्चे कॉलेज को आएंगे ना पीरियड अगले सेमेस्टर में, जब तो कंटिन्यूअस वो नोटिस बोर्ड, अगर आपका नाम है तो देखेंगे आपका नाम है फर्स्ट में है, सेकंड में, इसलिए हमें भी थोड़ा वेट कर रहे हैं उसको, क्योंकि अभी लगाया कॉलेज में कोई भी नहीं है ना। अच्छा, तो बिल्कुल लगाएंगे, या तो फिर मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, ठीक है? फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो गया ना, उसकी फोटो लेके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। और बाद में आप जब कॉलेज को आएंगे ना, तो जब नोटिस बोर्ड पे भी लगाएंगे, अपना जो केमिस्ट्री के बाहर जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड में लगाने वाले हैं हम, इसलिए थोड़ा। अच्छा। अभी तो आप लोग नहीं आ रहे ना कॉलेज को, ठीक है? मैं क्या करता, उसके फोटो लेके आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो उस पर साइन भी लेना है। अभी तो थोड़े पे फर्स्ट ईयर का नहीं हुआ अभी डिक्लेयर, क्योंकि दोनों ऊपर पहले फर्स्ट ईयर लगाना है, उसके नीचे सेकंड ईयर ऐसा लगाना है। और भी हमारे पास एग्जाम चल रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसमें भी थोड़ा बिजी है, और वो नैक का भी काम चल रहा था। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। सब पे डालेंगे और बाहर नोटिस बोर्ड पे भी लगाएंगे, क्योंकि सब बच्चों ने देखना है कि इनका नाम, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनका जो है नाम नोटिस बोर्ड पे आएगा।
टाइप करके उस पे अच्छा के प्रिंसिपल का वहाँ लगाना है, इसलिए उसलिए वेट हो रहा है। और अभी लगाएंगे तो आप लोग कोई देखेंगे नहीं ना उसे, कोई सब बच्चों ने देखना है ना उसे। जब कॉलेज पाएंगे आप इंशाल्लाह, सेकंड टर्म मतलब अगला टर्म ऑफलाइन होगा आपका, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम चल रहे, और एग्जाम के फौरन बाद मतलब 8 दिन के अंदर आपका कॉलेज शुरू होने वाला है। आपको छुट्टियां नहीं है, याद रखिए, मई की छुट्टी वगैरह, अंडरस्टैंड। आपका जब एग्जाम होगा पूरे मतलब सबके एग्जाम होना, ऐसा नहीं कि आपके खाली CBZ का हो गया, ऑल पेपर्स मेरे ख्याल से 7 या 8 मार्च तक एग्जाम है, उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाएगा 1-2-4 दिन के बाद। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिस देंगे कि ऑफलाइन जो भी है, मतलब ऑफलाइन पीरियड हो रहे या ऑफलाइन पीरियड हो रहे, नोटिस बोर्ड व्हाट्सएप ग्रुप पे नोटिस दी जाएगी, कॉलेज स्टार्ट हो गया बोले। ऑनलाइन है ठीक है तो सर। जूम पे लेंगे, और ऑफलाइन है तो कॉलेज में लेंगे। और जब आप लोग आएंगे तो नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। उसके पहले मैं आपको व्हाट्सएप में डाल देता, आप लोग वो 3-10 ठीक है सर। मैं ठीक है सर। फोटो लेके डाल देता, और जब आप आएंगे तो जब नोटिस बोर्ड पे लगाऊंगा, इसलिए मैं वेट कर रहा के आप जब अभी लगा के कोई देखेंगे भी नहीं ना, वहां तो पूरी धूल हुई है, अभी तो नहीं आ रहे से। जब आप आएंगे तो मैं ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में ठीक डाल है। दो। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, अच्छी तरह से तैयारी थैंक यू सर। कीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा, इंटरनेट पे भी बहुत से ऑब्जेक्टिव मिलते हैं आपको, सो प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन। ओके ओके सर। ओके, टेस्ट दीजिए, और PDF भी मैं आपको सेंड करूंगा तीनों टॉपिक के, इसके PDF भी सेंड करूंगा, ये टॉपिक के केमिकल इक्विलिब्रियम के PDF, और MCQ आई विल सेंड अगेन। ओके, विल स्टॉप हियर।